Very first sum. Sum number 1 says that a person completes 5 rounds on a circular path of a radius 50 meter. Find out the distance traveled by that person and magnitude of displacement. So your first question is, a person travels a circular distance, okay, कितने राउंड मार रहा है वो? 5 राउंड्स मार रहा है of a radius. Let's say this is the center of a circle and radius given is 50 meter. Okay, so you are asked, find out distance traveled by that person and magnitude of displacement. Let's say this is your initial position. Okay, so जब वो फाइनल तो 5 राउंड्स जब मार रहा है तो डिस्टेंस विल बी 5 times multiply by your circumference of a circle. Okay, जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ऑन अ सर्कुलर पाथ यू नीड व्हाट? दिस circumference of a circle multiply by ये 5 क्यों लिखा है? बिकॉज नंबर ऑफ राउंड्स he took is 5. So 5 into 2 pi and r. Now 5 multiplied by 2 into pi is 22 by 7, and yeah, you can also take this as 3.14. Okay, whatsoever you want to take, it is on you. यहाँ पे कोई specific value describe नहीं की है, so you can take this as well or you can take this as well, 3.14 or 22 by 7. So 5 into 2 into 3.14 into radius कितना दिया है? 50. Okay, 5 2s are 10 into 3.14 into 50. Now 50 into 10 is 500 into 314 upon 100. ऐसा कर सकता हूँ? 3.14 को मैंने क्या लिखा है? 314 upon 100. So this and this gets cancelled out, and 5 into 314 will give me 4 5s are 20, 5 1s are 5, and 2 7. Sorry, 7, 5 3s are 15. So your distance is 1570 meter. And now what is your displacement? Displacement is nothing but your final position minus your initial position. That is, यहाँ से A से start कर रहा है, वो 5 rounds मार के A पे ही वो end करेगा. So final position minus initial position, so it will be 0 meter. So distance is 1570 meter and displacement is 0 meter. Okay. Sum number 2 says that the distance between Ahmedabad and Vadodara is 100 kilometer. A scooterist travels at an average speed of 50 kilometers per hour. If he travels first 60 kilometers at a uniform speed of 45 kilometers per hour, what will be his speed for remaining distance? Now, ध्यान से सुनो. The distance between Ahmedabad and Vadodara, ये distance आप लोग को दे दिया है, and that is 100 kilometers. Okay. Now what is asked? Yeah, what is given? A scooterist travels at an एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड दे दिया है. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर्स पर आवर. ओके, देन व्हाट इज गिवन? इफ ही ट्रेवल्स फॉर 60 किलोमीटर्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर्स पर आवर, देन व्हाट विल बी हिज स्पीड फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस. एवरेज स्पीड से मुझे क्या मिलेगा? आप लोगों को पता है व्हाट इज एवरेज स्पीड? दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो मुझे पहले क्या मिलेगा? टोटल टाइम देखने को मिल जाएगा. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. मेरे पास
टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, मेरे पास एवरेज स्पीड है, इससे मुझे क्या मिलेगा, टोटल टाइम टेकन विल बी अवेलेबल। तो टोटल टाइम विल बी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड होगा। सो ये सिंपल ऐसे ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। ओके, नाउ टोटल डिस्टेंस क्या है आप लोगों का, टोटल डिस्टेंस इज 100 अपॉन योर एवरेज स्पीड क्या है 50 किलोमीटर्स पर आवर। So this and this gets cancelled, 5 1 za 5 2 za, so total time he took is 2 hours to reach Ahmedabad. From Ahmedabad to Vadodara he took 2 hours. Okay, now what is given, what next is given, if he travels first 60 kilometers at uniform speed of 45 kilometers per hour, मतलब फर्स्ट 60 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस दे दिया है और आपको स्पीड दे दी है, तो वो कितना है 45 किलोमीटर्स पर आवर। सो व्हाट विल बी हिज स्पीड फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब आप लोगों को अगर 60 किलोमीटर्स है बराबर, 60 किलोमीटर्स के लिए उसकी स्पीड क्या है 45 है। सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा 40 किलोमीटर्स, उसने टोटल टाइम लिया है 2 आवर्स, ठीक है। सो आप लोगों को कितना फाइंड करना है, द स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। अब स्पीड के लिए क्या करोगे, कैसे करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ फॉर फर्स्ट 60 किलोमीटर्स, और फर्स्ट 60 किलोमीटर्स कितना है उसके पास 45 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। तो नेक्स्ट अब कितना डिस्टेंस ढूंढना है आप लोगों को, कितना ट्रैवल करना है आप लोगों को, ये 40 किलोमीटर्स के लिए, ठीक है, वो कितना ट्रैवल करेगा, ठीक है, वो 40 किलोमीटर्स के लिए कितना ट्रैवल करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2 आवर्स ढूंढा है, अब इसके लिए मैं टाइम ढूंढ लूंगा, तो उसका टाइम अगर मुझे ढूंढना है तो व्हाट आई विल डू, अगेन टाइम विल बी नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी हम लोगों ने देखा, ये रहा स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस है आप लोगों का 60 किलोमीटर्स और एवरेज स्पीड है आप लोगों की 45, तो वो कितने टाइम में वो करेगा, 60 डिवाइड बाय 45 करोगे तो 9 15 3 जा एंड 15 4 जा, तो उसने टाइम कितना लिया 4/3 आवर्स लिया। फॉर फर्स्ट 60 किलोमीटर उसने कितना टाइम लिया 4/3 आवर्स। सो फॉर नेक्स्ट 40 किलोमीटर्स वो कितना टाइम लेगा, फॉर नेक्स्ट 40 किलोमीटर्स टाइम टेकन विल बी टोटल आवर्स कितने हैं 2 आवर्स, उसमें से फर्स्ट 60 में से उसने कितना ले लिया 4/3 विल बी 2 माइनस 4/3। क्यों मैंने 2 माइनस 4/3 किया, क्योंकि ओवरऑल टाइम है उसका 2 आवर्स और उसने कितना 60 किलोमीटर जब ट्रैवल किया उसने कितना टाइम ले लिया 4/3 आवर्स। दैट विल बी, नाउ अगर एलसीएम लोगे तो ये 3 ये 6 माइनस 4, तो रिमेनिंग टाइम है आपका 2/3 बराबर है। मतलब जब वो 40 किलोमीटर्स बाकी होंगे, उसको आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है 40 किलोमीटर्स की, तो जब वो 40 किलोमीटर्स बाकी होंगे तो उसका टाइम कितना होगा 2/3 आवर्स, ठीक है। नाउ यू आर आस्क्ड द स्पीड, सो योर स्पीड फॉर रिमेनिंग किलोमीटर्स 60 है, टोटल कितना है 100, तो रिमेनिंग किलोमीटर्स कितने होंगे आप लोगों के, रिमेनिंग किलोमीटर्स होंगे 40। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। देन ये डिस्टेंस जो है वो होगा 40 किलोमीटर्स, क्योंकि रिमेनिंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एंड टाइम इज व्हाट, कितना टाइम बचा है अभी 2/3 आवर्स, तो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, जब ये डिवीजन यहाँ पे चला जाएगा तो 40/2 इंटू 3 बराबर है 2 1 जा 2 20 जा, योर आंसर इज 60
kilometers per hour. 23 जा 60. So remaining time में वो कितनी स्पीड पे गाड़ी चला रहा है? Remaining distance में he is traveling 60 kilometers per hour. Sum number third. The speed of the scooter moving with uniform acceleration of 4 meter per second square becomes 20 meter per second at a certain time. ठीक है? After some time उसकी जो speed है acceleration 4 meter per second square दे दिया है, वो क्या बन जाता है 20 meter per second square at certain time. What will be the speed of the scooter when it has covered a distance of 112 meter after that time? मतलब आप लोगों को क्या क्या चीज दी हुई है वो देखिए each and every one. So one thing which is given is acceleration and that is 4 meter per second square. Then at a certain time it becomes 20 meter per second. मतलब आपका जो u है initial velocity is 20 meter per second and आप लोगों को distance भी दे दिया है s is equals to 112 meters. You are asked to find your final velocity. Now you all have three equations so as to find v. V is equals to u plus at, but यहाँ पे अपने पास टाइम गिवन नहीं है, so we cannot use that formula. Then we have s is equals to ut plus half at square जिसमें v आता ही नहीं है, so we cannot use that. So बचा कौन सा 2as is equals to v square minus u square. We need to find v square, so your v square is nothing but 2as plus u square होगा. ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा तो प्लस होता है. ठीक है? Now substitute 2 into 4 into 20. Okay? Sorry, s is 112 and u square is 20 का square. 4 2 जा 8 into 112 plus 20 का square होता है 400. 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 and 1 9 and 896 plus 400 will give me 1296. ये आया आपका v square. तो v क्या होगा under root 1296 which is the square root of 36 and 36 meters per second is your answer of sum number third. Final velocity is equals to sum number 4 suggests that the velocity of a particle performing motion with uniform acceleration on a linear position at position x is v and your final velocity which is given as 196 minus 16x ऐसा दे दिया है. बराबर है? Where x is in meter. अगर x is in meter है this means your distance s is equals to x. बराबर है? मीटर किसका है? या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट का होता है, राइट? देन व्हाट इज गिवन? What would be the acceleration of this particle? You need to find acceleration of this particle. Take initial velocity of particle s. U is given as 14 meter per second. Now again, which formula we will use? The same formula. A find करना है, v है, s है, u है. So 2as is equals to v square minus u square. बराबर है? Now 2 into a और s मतलब आपका x हो जाएगा. Now v square मतलब 196 minus 16x उसका होल स्क्वायर. बराबर है? ये v स्क्वायर होगा. माइनस u का स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर. नाउ व्हाट? ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर है, सो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल, जैसे हम लोग नेक्स्ट में करते आते हैं. तो 2ax इज इक्वल्स टू 196 माइनस 16x और 14 का स्क्वायर होता है 196. 196 and 196 gets cancelled. Then 2ax is equals to minus 16x. X and x gets cancelled. So बचा क्या? 2a is equals to minus 16 and a is equals to minus 16 by 2.
okay, and that will be nothing but -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन माइनस में आता है देन इट्स डिस्क्राइब दैट दिस इज योर रिटार्डेड मोशन। ये कैसा मोशन होगा आप लोगों का? ये मोशन होगा रिटार्डेड मोशन। सो दिस इज योर आंसर फॉर सम नंबर 4th ऑफ योर डाइजेस्ट, मतलब एडिशनल सम्स। Sum number 5. Sum number 5 says that a person takes observation from odometer of his motor car while starting journey as well as after 40 minutes of his journey. Now, what do you mean by odometer? मैंने आप लोगों को समझाया था odometer क्या होता है। तो odometer is the one which is used to find the distance. ठीक है, so odometer है which are found as respectively 1046 kilometer and 1096 kilometer. What would be the average speed of the motor car? Now try to understand. जब उसने, आप लोगों ने ये देखा होगा, this is your let's say ये स्पीडोमीटर में ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, बराबर। ये कुछ ऑडोमीटर जैसा दिखेगा, ये जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। ये जो वैल्यू है ये उसने जब जर्नी स्टार्ट की है तब का है 1046, और जब उसने आफ्टर 40 मिनट्स उसने अपना ऑडोमीटर वापस देखा तो यहाँ पे आ गया 1096। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है कि उसने टोटल किलोमीटर कितना ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम विल बी 1096 minus 1046 and that is nothing but 50 kilometers. उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 50 किलोमीटर्स। नाउ टाइम उसने कब देखा? तो टाइम ही हैज सीन 40 मिनट्स। नाउ 40 मिनट्स है और ये 50 किलोमीटर्स है। मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? जब भी समझाया था आप लोगों को किस में आंसर लाना है? मीटर्स पर सेकंड में आंसर लेके आना है। तो मीटर्स पर सेकंड करना है, तो यहाँ पे आप लोगों का जब 50 किलोमीटर है तो इट विल बी 50 अपॉन 1000 विल बी योर मीटर, बराबर है। एंड दिस गेट कैंसल, तो 5 अपॉन 100 will give me 0.05 मीटर, बराबर है। Now 40 मिनट्स को जब सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो वो सेकंड्स में किस तरह से कन्वर्ट होगा? 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, so 40 minutes is equals to how many? तो 40 into 60 will give me 2400 seconds. Now you are asked average speed. Average speed. So distance traveled and time. You are asked your average speed. Okay. So average speed is nothing but total distance upon total time। टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस इज 0.05 मीटर, 0.05 अपॉन टोटल टाइम इज 2400। You can calculate and get your average speed as, now 0.05 है upon 2400 है, then your final answer in meters per second will be 2.0833 into 10 raised to minus 5. 2.083 into 10 raised to minus 5 meters per second. ये आता है आपका एवरेज स्पीड, और एल्स यू कैन कीप इट इन किलोमीटर्स पर आवर एज वेल। अगर किलोमीटर्स पर आवर में करना है देन व्हाट वी विल डू, ये जो है उसको मैं किलोमीटर्स का किलोमीटर्स में ही रखता हूं, और जब इसको मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है, सो 1 आवर या 60 मिनट्स
is equals to 1 hour, and so 40 minutes will be how much? 40 into 1 upon 60. Okay, 40 into 1 upon 60. ये गया, ये आ गया आपका 4/6 आवर. अब एवरेज स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. डिस्टेंस है 50 अपॉन 4 अपॉन 6 है, तो ये यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन 2 2s are 2, 25s are 25, 6 are 150 divided by 2, and that will be 75 kilometers per hour. So that's your answer for sum number 5. Okay, so sum number 6. Sum number 6 says that when brakes are applied to a train running on a straight line with initial velocity 40 meter per second, it stops after covering 200 meter distance. Means u given is 40 meter per second. It stops means v is 0 meter per second, and you are asked s, distance traveled, is 200 meter. Then you are asked to find what would be the retardation produced in a train. So retardation means nothing but your negative acceleration. So you need to find A. Then you have formula 2as is equals to v square minus u square. 2 into A, you need to find that s is 200 and v square nothing, 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जब करोगे तो इट विल बी 40 का स्क्वायर. 2 into 200 is a into 400 minus 40 का स्क्वायर will give me minus 1600. So a is equals to minus 1600 upon 400. So your answer is a is equals to minus 4 meter per second square. Why this minus sign came? Because you are asked retardation, and retardation will always come as negative acceleration. So that's